ଅଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଭାରତର ଅମୃତମୟ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ତରଫରୁ ଆଳତୀ ହୁଏ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଆଗରେ वासुदेव जगन्नाथ नमो नमः तुह्यात्मन जगन्नाथ ଏହି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମର ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଭିତରକୁ କହିଲେ ବି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବି ପାସ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଗଲେ ପାସ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ଭାଇ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପଣ୍ଡା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପାସ୍ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ସବୁ ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହୋଦଧିର 17ତମ ମହୋଦଧିର ଆଳତୀ ହେଉଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି ମହତ୍ଵ ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କହୁଥିଲି ଆମକୁ ଭିତରୁ ଯିବା ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିଏ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପଣ୍ଡା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାସ୍ କି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାସ୍ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଭିତରେ ଆସିବେ ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶ ଲାଲ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ। ତ ତାଙ୍କର ମହୋଦଧି ଆଳତୀ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ଟିକେ କହିବେ ମହୋଦଧିର ଆଳତୀ କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆମର ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ମହୋଦଧି ଆଳତୀ ଏକ ନିଆରା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ। ଏ ମହୋଦଧି ଆଳତୀ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଆଳତୀ। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଳତୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ବେଦ ପାଠଶାଳା ବେଦ ପାଠକମାନେ ଏଠି ବେଦ ପାଠ କରି ମହୋଦଧିକି ତିରସ୍କାର କରି ଆଜି ମହୋଦଧିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଚଳେ। ବାର୍ଷିକ ଆଜି ହେଉଛି ମହୋଦଧିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାସ୍ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମର ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବେଦ ପାଠଶାଳାର ବି ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ମଠ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପୀଠର ଏହି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠର ବି ବହୁତ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସେଇପଟେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଶବଦାହ ଚାଲିଅଛି। ଶବଦାର ବହୁତ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରୀ ଭିଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କର। ଯେମିତିକି ଆମର ଶବ ସରକାର ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମାନେ ଭାଗ୍ୟର ଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମାଟିରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ଭାଗ୍ୟର ନଥିବ ନା ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମାଟି ପଡ଼ିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଶବ ସତ୍କାର ଗୋଟେ ଚାଲିଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ବି ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପାସ୍ ଥିଲା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ପାସ୍ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତ କାରଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଲାଲ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଣେଶ ଲାଲଜୀ ଆସିନାହାନ୍ତି।
तो बर्तमान तो आमर आदिगुरु शंकराचार्य मुखर किछिटा बाणी शुणिकी आपणकर निजक आत्मा को पंच आत्मा को पवित्रित करातु। तो वर्तमान लोकों समुद्र कूल भिड़ पूरा देखु आपणकर जो पर्यंत पूरा लोक ही भिड़। तो भिड़ पूरा अलग प्रकार भिड़। शंभो शिव 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 नारायण। आदिगुरु शंकराचार्य मुखर यही पवित्र मंत्र शुणिकी आपण मैंने आत्मा को पवित्र करंतु। प्रार्थना करी आपण मैंने भी समस्त यही पौष पूर्णिमा प्रतिवर्ष आसतु पुरी को। अर्थ नामक पुरुषार्थ का विकास के नाम पर विलोप हो चुका है। अर्थ नामक पुरुषार्थ का भी विलोप हो चुका है। आखिर अर्थ किसको कहते हैं? पृथ्वी को अंग्रेजी वाले अर्थ ही कहते हैं। पृथ्वी अर्थ है, पानी अर्थ है, प्रकाश अर्थ है, पवन अर्थ है, आकाश अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। अर्थ के गर्भ से अनर्थ निकल रहा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। द्यूत, जुआ, लॉटरी, सट्टा, मद्य आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब तो अर्थ दैहिक दैविक भौतिक ताप इनकी प्राप्ति और व्याप्ति अहंकार पर्यंत ही होती है। गाढ़ी नींद में चूँकि अहम सो जाता है इसलिए हम द्वंद्व और दुख से विमुक्त जीवन लाभ करते हैं 5-7 घंटों के लिए। अगर द्वंद्व और दुख से रहित जीवन गाढ़ी नींद में हमको प्राप्त ना हो तो हम विकसित हुए बिना न रहें। ध्यानपूर्वक सुनिए, जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती और निर्विकल्प समाधि के विकल्प रूप में कदाचित गाढ़ी नींद भी सुलभ नहीं होती, वो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रह सकते। मैं संकेत में 2 मिनट कहना चाहता हूँ। एक बार ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य समय के श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग उरियाबाद जी के आश्रम वृंदावन में एक दिन के लिए पधारे। उन दिनों ब्रह्मचारी वेश में मैं था, मेरा नाम था ध्रुव चैतन्य। उन्होंने मुझसे पूछ दिया, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि गाढ़ी नींद बना डाली। सीधी भाषा में बोलते थे, हमारी तरफ टेढ़ी मेरी भाषा में नहीं बोलते। कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने गाढ़ी नींद बना दी। मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए। उनको संस्कृत के श्लोक इतने याद थे, आँख मूंद कर 1.25 घंटे नित्य पाठ करते तो 40 दिनों में एक आवृत्ति करते। इतने बड़े विद्वान आँख मूंद करके 1.25 घंटे नित्य पाठ करते थे तो 40 दिनों में एक आवृत्ति कर पाते थे। इतने उनको संस्कृत के वचन याद थे। उन्होंने मुझसे कहा 45 मिनटों में अगर हमको गाढ़ी नींद न आती तो हम पागल खाने में होते, आगरा में ही होते। वृंदावन के पास आगरा है। निसहाय जीवों को जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है उन पे करुणा वरुणालय ने अनुग्रह करके गाढ़ी नींद बना दी। लेकिन गाढ़ी नींद की विशेषता यह है कि हम सो जाने के कारण शेष रहता है। उस द्वंद्व और दुख के बीज को वर्तमान आदिगुरु डालने के लिए, भूल डालने के लिए हमको भगवत कृपा से जीवन प्राप्त हुआ है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के अनुसार अगर हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्यात्म विद्या प्राप्त करते हैं तो द्वंद्व और दुखों का बीज भी। राज्यपाल गणेश लाल को देखो तो माननीय राज्यपाल चना इत्यादि का बीज होता है, भर्जित बीज, उसको गर्म तवे पर रखकर भून देते हैं, उसमें स्वाद बढ़ जाता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन भर्जित बीज को ऋतु काल में उर्वर भूमि में भी बो दें, उससे अंकुर इत्यादि की उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है भर्जित बीज के समान होता है। जीवन मुक्तों का स्वभाव अद्वेष्टा सर्वभूता नाम इत्यादि दृष्टि से समाकर्षक होता है। सबको आत्मस्वरूप समझते हैं, सबको परमात्मी समझते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या उनके जीवन में प्रतिष्ठित रहती है। महोपनिषद के 6ठे अध्याय में वसुधैव कुटुम्बकम यह वचन आया।
और गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक संकेत कर तुम्हारा आपका जीवन वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है या नहीं। भगवत गीता के 3रे अध्याय के अनुसार माँ के पेट से जीवन सहित हम उत्पन्न होते हैं, जरायुं प्राणी हो गए या नहीं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार माँ के पेट में अंडा के रूप में रहते हैं, अंडजा प्राणी हम हो गए या नहीं। अंडे का मौलिक स्वरूप है माता पिता के रजबीज का संघात, उसका नाम क्या हो गया, स्वेदजा प्राणी हो गए। लेकिन रक्त रजोधर्म की अर्थात रक्त की और बीज की प्राप्ति होती है अन्न आदि से, उद्भिजक प्राणी भी हो गए। स्वप्नावस्था मनसिज प्राणी हो जाते हैं, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होकर अब स्वयंभू प्राणी हो जाते हैं। स्वयंभू प्राणी होते हुए मनसिज है, मनसिज होते तीनों रूपों में आत्म चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। आत्मा का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद ही सर्वरूप लक्षित है। हमको वेदांत शास्त्रों के आधार पर जैसा ईश्वर मिला है, किसी अन्य ईश्वरवादी को वैसा ईश्वर कभी नहीं मिला। ईश्वर एक समान मत मानो। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक मिनट में देखो वर्तमान महामहिम राज्यपाल स्टेज उपरे अच्छे आज शंकर राज्य बहुत गुड़े वेद पाठशाला भी छात्र मैंने बर्तमान आमरी कॉलेज प्रकाश सर आसिक बर्तमान आलती जागी समुद्र महोदय आलती हर हर महादेव। समय बार बार हमें संकेत कर रहा है 7 बजे तक जो सीधे प्रसारण का क्रम है, ताकि विश्व भर के लोग भगवत पाद द्वारा भगवान समुद्र की आरती का दर्शन कर सकें। बस बीच में छोटा सा मैं व्यवधान नहीं कहूँगा, अत्यंत हर्षपूर्वक यह विषय प्रतिपादित कर रहा हूँ। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने गोवर्धन मठ पूरी पीठ के 143वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी धार्मिक तीर्थ द्वारा विरचित वैदिक मैथमेटिक्स वैदिक गणित नामक पुस्तक जो 450 पृष्ठों में है, उसके आरंभ के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1457 पृष्ठों में की है, जो कि 2 वॉल्यूम में 2 खंडों में पूर्वामनाएं वैदिकार्ष गणित के रूप में प्रकाशित हुआ है, जिसका लोकार्पण विमोचन अभी माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री वैष्णव महाभाग पूज्य स्वामी जी एवं स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के लोकार्पण महामहिम राज्यपाल के करतलों से श्री वैष्णव महाराज श्री स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज पूज्य स्वामी जी महाराज एवं जगत गुरु जी स्वयं लोकार्पित ना बॉक्सिंग शूटिंग वाला देखा जानो। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे श्री माननीय राज्यपाल महोदय से कि वे सूत्रात्मक शैली में इस अवसर पर सभी श्रद्धेय संत श्री चरण में प्रणाम करता हुआ विलंब के मेरा कोई संदेश मैं कैसे दे सकता हूँ। मैंने तो सुना है पूरे विश्व का टेक्नोलॉजी लग जाए तो एक पुष्प को पैदा करने का उत्पन्न करने का सृजन करने की कोई क्षमता नहीं है। अभी जो मैंने कहा सुने, पूरे विश्व का टेक्नोलॉजी पूरे विश्व का ऐश्वर्य धन दौलत भी लग जाए, एक पुष्प पैदा नहीं कर सकते। प्रकृति रक्षित, इसलिए नेचर को कहा गया है विजिबल गार्मेंट ऑफ गॉड। समुद्र तो भगवान कृष्ण का रूप है, हम सब जानते हैं। विश्व को कैसे बता रहे हमको, मैं एक संक्षेप में एक लाइन में कहना चाहता हूँ। सुमंगलदायक जगत गुरु गुण ज्ञान
सागर सुनई तरई भव सिंधु बिना जल जाए। गर्म सुभाषण तरही मिटाई गोपद सिंधु अनल से चलाई। ये समुद्र भी गाय का खुद बन जा रहा है। जैसा आपने हमको आदेश दिया है पूरे विश्व को, आपने इस जिसको विज्ञान कहते हैं उसके माध्यम से पूरे विश्व को समझाने का प्रयास किया है। आपकी कृपा से प्रभु जगन्नाथ का आशीष, भगवान की कृपा, आदिशक्ति की कृपा से और पूरा विश्व होश में आ जाए, मैं यही केवल मात्र निवेदन करना चाहता हूँ। और आपके श्री चरणों में फिर से प्रणाम करता हुआ आपके आशीर्वाद की प्रार्थना। एयरटेल आसू खाली एयरटेल आसू टोटली हर हर महादेव। समस्त को नम्र निवेदन समस्ते निज निज स्थान में ठिया मर्यादा को सामने रखी पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान अमृतमय दिव्य और भव्य उपस्थिति हम समस्त को गरिमामय करो। सेठिपाई आरती स्थल हमें कहीं प्रवेश करना नहीं। अधिकृत व्यक्ति माने आरती स्थान में रहिबे हमें समस्ते संदर्शन करिबा। मंचर संतचरण राजनैतिक नेतृमंडली समस्ते मंच ऊपर ही रहिबे एवं जो माने अतिथि अछंती समस्त अतिथि माने निज निज स्थान रे ठिया ही आरती संदर्शन करिबे। पूज्य गजपति महाराज जी अछंती महामहिमा राज्यपाल जी महाभाग साधारण लोकांतर राज्यपाल से मध्य संत महंत मठाधीश मानंग गहन अछंती। पूज्य जगद्गुरुंकर अमृतमय संकल्प आदि चरितार्थ हेछि 17तम महोदधि महारतिर अमृतमय संध्या। बोले जगन्नाथ भगवान की सद्गुरु शंकराचार्य भगवान की तीर्थराज महोदधि भगवान की आनंद
যুগে যুগে জগন্নাথ ও জগন্নাথ জগন্নাথ যুগে যুগে জগন্নাথ ও জগন্নাথ জগন্নাথ तो बर्तमान आमर कार्तिक भाईना बर्तमान भोग आनी सारी आम भगवान भाई कार्तिक भाईना सत्य भाईना
କାର୍ତ୍ତିକ ସତ୍ୟବାନ ସବୁ ଭୋଗ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୋଦୟ Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, ଭୋଗ ଦିଅ।